Okay, so till now we have discussed about bipolar junction transistors, their different configurations, and important terms and characteristics of bipolar junction transistors. Okay, in the conclusion of last lecture, I have discussed that these BJTs, that is the bipolar junction transistors, are current control devices. Now, my next job is to introduce you with the another type of transistor, that is field effect transistor, or you can say FET. Okay, field effect transistor. Mainly, the FET are different from the BJT on the basis that FETs are voltage control devices. They are voltage control devices. Okay, so during the discussion of these FETs, their working and principle, we will see why they are known as voltage control devices, how they are different from the BJTs in working and principle. Okay, so welcome to this particular lecture. In this lecture, we will discuss about field effect transistors, their basic operation, working principles, and kind of important terms. Okay, so you can write down the name of the topic as Introduction to the FET field effect transistor, or JFET also, that is junction field effect transistor. Okay, so let's start the discussion. Let's use the technology to share notes with you as well for the convenience of your writing. Okay. Okay. So the topic of discussion is field effect transistor. वैसे तो इनके नाम में ही given है कि field effect means they are affected by the field, और जब डिटेल में चलेंगे तो देखेंगे कि they are affected by the input field, electric field, or the voltage at the input circuitry. That is why they are known as the voltage control devices. However, let's start from the beginning and let's check. Okay, so in principle, the use case of FETs is more nowadays in most of the electronic devices because of their high impedance value. So एक छोटा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका इनपुट इम्पिडेंस कितना होता है, less than the transistor BJTs or more than it. So input impedance is high as compared to the bipolar junction transistor. देखो bipolar junction transistor में input impedance कम होता है, और जो बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं कुछ चेंज करके भी इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाया जा सकता है, बट दैट इनपुट इम्पीडेंस इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू एफईटी. तो एफईटी में इनहेरेंटली उसकी स्ट्रक्चर वाइज ही, उसके प्रिंसिपल वाइज ही हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस है, ठीक है. सो इट इज ए हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस एंड ऑल्सो लेस नॉइजी. ओके, सो now you can write down, means you have to write down this all, but for the understanding point of view, that in FETs the output characteristic are controlled by input voltage. Very important term. Okay, in FETs the output characteristic, की output characteristic कौन होगी, output current and output voltage का जो combination हम देखेंगे, so they are affected by the input voltage, not by the input current. ओके, तो इसीलिए इनको कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस, क्योंकि इनकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट वोल्टेज. ओके, in BJTs the output characteristic are controlled by base current and by base voltage. okay, आप देख सकते हैं जो BJT में जब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट की थी, ड्रॉ की थी, वहां पे जब हम वेरिएशन देख रहे थे तो हम आई और वी के बीच में जब प्लॉट कर रहे थे तो कीपिंग आई वेरिएशन, आई बी का वेरिएशन कर रहे थे, और फिर देख रहे थे कि कैसे कैसे प्लॉट्स आ रहे हैं. तो वहां पे इनपुट करंट वाज द
मेन कंट्रोलिंग थिंग जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहा था, राइट। यहाँ पे ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी दे आर वोल्टेज डिपेंडेंट, दे आर इनपुट वोल्टेज डिपेंडेंट। जो इनपुट सर्किट की जो वोल्टेज होगी वो वहां पे कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि एफईटी जो है दे आर वोल्टेज कंट्रोल्ड, उनकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है, या इनपुट वोल्टेज ही उसको कंट्रोल करती है कि आउटपुट करंट कैसा जाएगा, कितना उसका पीक वैल्यू होगा, कैसे उसका वेरिएशन होगा। ओके, नाउ types of FETs. So field effect transistors are basically of two type, that is junction field effect transistor, इसको हम कहेंगे JFET, and the next is metal oxide semiconductor field effect transistor. तो field effect transistor तो FET हो ही गया, यहाँ पे JFET नहीं MOSFET लिखो इसको। ओके, ये गलती से लिखा गया है। सो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये हो गया MOSFET एंड JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फॉर JFET। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस JFET पे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे MOSFET पे। रीजन बीइंग कि यू आर ए बिट फेमिलियर विद द BJT एंड द थिंग्स। अब JFET में थोड़ी सी वर्किंग चेंज होगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। अगर मैं दोनों चीजें एक ही लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन में लाऊंगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि सब कुछ मिक्सा हो रहा है। तो इसीलिए हम एक लेक्चर JFET पे रखेंगे और एक MOSFET पे रखेंगे, ताकि यू विल गेट सम इन प्रॉपर टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ JFET। ओके, वैसे बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, वैसे आइडिया एक बात का आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हम एक दूसरी टाइप का ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीजें हमने लगभग पहले पढ़ी हैं, जो BJT में पढ़ी हैं, वैसी वैसी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए होगी। लेकिन एग्जाम में JFET से बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे, अदरवाइज जो हमने BJT में जो समझा है वैसा ही हमें JFET में भी समझना चाहिए कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, क्या यूज केसेस होंगे, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, राइट। सो व्हाट अबाउट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल ओनली be restricted to JFET. So it is a three-terminal semiconductor. Again, it is a three-terminal semiconductor device in which current conduction is by one type of carriers. Bipolar में क्या था? Two type of electron and hole. यहाँ पे क्या है? One type of carrier के थ्रू ही current conduction होगा. That is either electron or hole. That will depend कि आपका जो JFET है वो कौन सा है, क्या वो N चैनल का JFET है या P चैनल का है। तो अगर वो N चैनल का है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर टू कंडक्ट द करंट, और अगर P टाइप है तो होल विल बी द चार्ज कैरियर्स। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई है कि जो फैट है, जो JFET हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर रखता है, इधर इलेक्ट्रॉन और होल। और ये भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन होगा कि होल, कि N चैनल JFET है कि P चैनल JFET है। ओके, एंड JFET हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो नॉइज, ये हमने पहले भी लिखा था। देखो थ्री टर्मिनल्स कौन कौन से, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये गेट है, गेट, दिस इज ड्रेन एंड दिस इज सोर्स। ये क्या है? सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो जैसे हम समझे कि N चैनल JFET क्या है, तो N चैनल JFET में ये एक N टाइप मटेरियल की रोड है, ठीक है, एक बार है, इसमें एक ये P टाइप मटेरियल इधर से डोप्ड है। ओके, तो ये P टाइप इधर और P टाइप इधर। तो ये दोनों जो P टाइप हैं ये एक्चुअली गेट ही हैं, और ये देखो इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये दोनों चीजें गेट से ही कनेक्टेड हैं। तो टर्मिनल 3 ही हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट, और दोनों तरफ जो P टाइप मटेरियल है वो कनेक्टेड है वाया दीज ओमिक कॉन्टेक्ट्स। तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बने हुए जिनके थ्रू आपकी लीड्स हैं वो आउटपुट में गई हुई है, ठीक है। तो गेट इंटरनली कनेक्ट होता है दोनों तरफ से, ड्रेन इज वन एंड सोर्स इज वन। तो तीन हो गए। जैसे वहां पे होता था भाई बेस, कलेक्टर और इमीटर, ऐसे यहाँ पे है गेट, सोर्स और ड्रेन। तो थ्री टर्मिनल है। एनालॉजी सेम नहीं है लेकिन थ्री टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखो, अगर P टाइप होगा तो P टाइप, जो P चैनल JFET होगा उसमें रोड जो है वो P टाइप की होगी, लेकिन ये जो साइड जो डोप्ड है ये N साइड से है, ये मटेरियल N साइड का है, ठीक है। तो ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया और ये ड्रेन हो गया। तो गेट अगेन इंटरनली कनेक्टेड एंड टेकन आउट, एंड ड्रेन एंड द सोर्स। तो P चैनल और N चैनल JFET आर टू टाइप ऑफ JFET initially. Okay, so now
लेट्स सी दैट गेट एंड सोर्स, अब देखो इनकी सर्किटरी क्या रहेगी, ये बड़ा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। देखो गेट एंड सोर्स वोल्टेज, गेट एंड सोर्स मतलब ये वाला जो इनपुट है, गेट एंड सोर्स वोल्टेज इज रिवर्स बायस, ये हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। ऑल्दो द ड्रेन एंड सोर्स आर इंटरचेंजेबल, इन प्रैक्टिस अगर आप ड्रेन और सोर्स है दे आर इंटरचेंजेबल, हाउएवर आप एक पकड़ के चलते हैं, ड्रेन ऊपर और सोर्स नीचे, वो थोड़ा कन्वेंशनल है बस, ओके, एंड दे कैन बी यूज एज सोर्स एंड ड्रेन। नाउ सी गेट और जो सोर्स है दे विल बी ऑलवेज रिवर्स बायस। तो देखो अगर हम एन टाइप, एन चैनल जेफेट जो है दैट इज ऑफ मोर प्रैक्टिकल यूज, इसी को हम ज्यादा देखते हैं। तो अगर एन चैनल जेफेट का यूज केस लेके चलें तो ये एन चैनल हो गया, दोनों तरफ से पी साइड, पी टाइप का डोप्ड है इधर से, और ये अब बार बार देखो एक्चुअली ये जो पी जो कनेक्टेड है दोनों आपस में, ये ऐसे हैं जैसे कि ये समझ के चलिए जैसे बेल्ट होती है, ओके, तो ऐसे बेल्ट की तरह से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई भी अलग से नोब नहीं ली गई है, ये मान लिया गया है, ये अब समझ लिया है हमने कि ये कनेक्टेड होते हैं, तो एक साइड से ही कनेक्शन लिया है गेट का। तो ये अंडरस्टूड है कि जो इफेक्ट इस पे जा रहा है वो इफेक्ट इस पे भी जा रहा है, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो गेट और सोर्स इसको क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो पी साइड को नेगेटिव दिया है और एन साइड को पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो गेट एंड सोर्स इज रिवर्स बायस। और रिवर्स बायसिंग में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आइडियली तो यही होता है कि पी को एन नेगेटिव पे कर दिया, एन को पॉजिटिव पे कर दिया, लेकिन हमने ऐसे भी केसेस देखे थे बीजेटी में कि अगर रिवर्स बायसिंग देख है कि फॉरवर्ड बायसिंग है, ये देखने के लिए हम देख लेते हैं कि भाई अगर रिवर्स बायसिंग है तो पी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, एन है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो किसी सिचुएशन में कि भाई वो भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, बट फिर देखा जाता है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कहाँ है, तो हायर पोटेंशियल अगर एन पे है, लोअर पोटेंशियल अगर पी पे है, तो दैट इज रिवर्स बायस। तो यहाँ पे देखो हमने नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, सोर्स इज हेयर एंड इट इज हेयर। नाउ जो ड्रेन और सोर्स है इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जो एन चैनल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव लाइक दिस, electrons will flow like this and the conventional current will flow like this, okay, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एन से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विल बी पुश देयर और इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और करंट जो है वो ऐसे चलेगा। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है, क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है, आगे चलते हैं। So gate source, that is the input circuit, is reverse biased and hence has high input impedance. तो रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ का इम्पिडेंस क्या है, हाई है। ड्रेन करंट ID फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, हमने क्या कहा था अभी, करंट जो है दैट इज ID कहा जाता है ड्रेन करंट, वैसे IS भी उसको कह सकते हैं, सोर्स करंट भी, वो दोनों सेम ही बात होती है, बट कन्वेंशनल है कि उसको ID के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो ID फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, करंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन्स की उसके अपोजिट थी, यहां तक क्लियर है बात। सो इन ऑल जेफेट सोर्स करंट IS इज इक्वल टू ड्रेन करंट ID, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये चीज पूछी जाए तो इट इज इक्वल, अदरवाइज जनरली ID के रूप में उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ जेफेट। तो क्या किया है, देखो ये अभी स्विच ओपन है और ये गेट को यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव सोर्स में लगा दिया है, नेगेटिव ये रिवर्स बायस हो गया है, एंड अगेन इट इज VDS और VDD। VDS का मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन D एंड S, और अगर कई बार बैटरी लगाई होती तो उसको VDD भी बोल देते हैं, तो दैट इज द सेम थिंग, ओके। सो ये रिवर्स बायस हो गया है, N टाइप चैनल है और P टाइप का इसमें दोनों साइड से डोप्ड है ये, ओके। तो ये P चैनल है, ये गेट हो गया है, एंड दिस इज द केस। नाउ सी होता क्या है कि अगर हम ये समझ के चलें कि VGS जो है दैट इज द गेट सोर्स वोल्टेज, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे, इसको समझ गए तो बस फिर कुछ भी नहीं है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि होगा क्या कि अगर हम कहें कि पहले मान के चलते हैं कि VGS जो है अगर वो जीरो है, फॉर एग्जाम्पल 0 वोल्ट है, VGS क्या है, 0 वोल्ट है। अगर VGS 0 वोल्ट है और VDS कोई वैल्यू है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं,
तो होगा क्या कि इस रिवर्स बायसिंग की वजह से, अगर ये रिवर्स बायसिंग होती तो होना क्या था, रिवर्स बायस डिप्लेशन लेयर को एक्सटेंड करती है, इंक्रीज कर देती है। तो डिप्लेशन लेयर जो है वो इंक्रीज करने लगती। पहले समझो एक बार, पूरा डिटेल में लिखना नहीं है, अभी मैं पॉइंट्स वाइज समझा रहा हूं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि वीजीएस को 0 से शुरू किया और वीजीएस को बढ़ाना शुरू करते हैं। वीडीएस रखा हुआ है और वीजीएस को इंक्रीज करना शुरू किया है। तो वीजीएस जैसे इंक्रीज होना शुरू होगा तो होगा क्या कि जैसे वीजीएस बढ़ने लगा है तो जो डिप्लेशन लेयर है पी और एन, देखो ये पी है और ये एन है पूरा, तो यहां पे डिप्लेशन लेयर बनेगी, यहां पे डिप्लेशन लेयर है, तो डिप्लेशन लेयर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब डिप्लेशन लेयर जब इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लेशन लेयर, देखो अभी मैं आइडियली बता रहा हूं, अगर डिप्लेशन लेयर ऐसे बढ़ने लगी है तो डिप्लेशन लेयर के बढ़ने से जो ये एन चैनल है, जब मैं चैनल की बात कहूं तो वो ये चैनल है, एन चैनल है या पी चैनल है, और डिप्लेशन लेयर का मतलब है कि ये कितना एक्सटेंड हो रहा है। तो जैसे जैसे नेगेटिव बायस, रिवर्स बायस बढ़ेगी, उस सिचुएशन में डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ती जाएगी। तो जितना वीजीएस बढ़ रहा है, जितना रिवर्स बायसिंग बढ़ रहा है, उतना ही डिप्लेशन लेयर बढ़ता जा रहा है और चैनल जो है वो कम होता जा रहा है। चैनल की विड्थ क्या है, कम होती हुई जा रही है। तो अगर चैनल की विड्थ कम है तो जो करंट पास कर रहा है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। तो अगर मैं कहूं कि एक बार जब मैंने वीजीएस जो है फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट पे चला के देखा इसको, और फिर मैं कहूं कि वीजीएस जो है वो मैंने -2 वोल्ट पे चला के देखा, तो जो -2 वोल्ट वाला केस है वहां पे करंट कम होगा, वहां पे करंट कम होगा। कारण क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो बढ़ जाएगी और जो इसके जो चैनल की जो विड्थ, जो चैनल की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, नैरो चैनल हो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है, ठीक है। तो देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस इनटू दैट, ओके। पहले इतना चैनल अवेलेबल था, अब चैनल इतना बच गया है, अब और पास आ गए हैं। जैसे जैसे VGS बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर VGS इक्वल टू -4 वोल्ट हम ले लें, तो -4 वोल्ट वाले में और कम करंट जाएगा -2 वोल्ट वाले कंपेयर में। तो जितना विड्थ कम होगा उतना कंडक्टिविटी कम होगी, करंट कम होगा। लेकिन एक लिमिट है कि अगर मैं VGS को 0 वोल्ट से ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो इसका प्रिंसिपल है कि हमें रखना इसको 0 और 0 से नेगेटिव की तरफ है। तो अगर 0 वोल्ट पे भी लेके चलें तो करंट जितना मैक्सिमम जा सकता था वही है, समझ पा रहे हो। VGS जो है वो एक साइड प्ले कर रहा है कि या तो घटा सकता है करंट को, या बढ़ाना भी है तो उस लेवल तक बढ़ा सकता है जहां पे VGS 0 है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग विड्थ है उससे कम नहीं कर सकता है। तो VGS की तो ये लिमिट हो गई है। बात समझ में आई कि नहीं। अब होगा क्या, लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि VGS जो है वो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो VGS का इफेक्ट तो हमने देख लिया कि VGS क्या करेगी अपने आप में। अब देखते हैं VDS का इफेक्ट क्या है। तो मान लेते हैं कि VGS जो है वो 0 वोल्ट पे है, VGS है वो 0 वोल्ट पे है, इसका जो अपना एक डिप्लेशन था वो है। अब हम VDS को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, VDS को क्या करना शुरू करते हैं, इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन अमाउंट तक जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। बट व्हाट विल हैपन कि जैसे ही, देखो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि भाई ये जो पाथ है, जो एन चैनल का जो पाथ है, ये कुछ रेजिस्टेंस तो क्रिएट कर रहा है, राइट, कुछ रेजिस्टेंस तो क्रिएट कर रहा है। तो अगर इस बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में समझें, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो रोड है इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे सीरीज में, भाई ये रेजिस्टेंस ही तो है, समझने के लिए सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि अगर इस इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, ज्यादा होता है, यही तो खेल चल रहा है सारा। तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं यहां पे कोई रेजिस्टेंसेस हैं इसके बीच में। अब यहां पे फॉर एग्जांपल VDS है वो 2 वोल्ट ले लो, 4 वोल्ट ले लो, कितना भी रख लो। अब अगर मान लो यहां पे 2 वोल्ट है, यहां पे 0 है, ऐसा सिचुएशन है, और जो रेजिस्टेंस है वो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाई ऊपर ज्यादा है कि नीचे ज्यादा है, वो तो कुछ भी हमने समझा नहीं, हम क्या मान रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं, मान लेते हैं, तो अगर हर एक के क्रॉस 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो यहाँ पे होगा 1.5 वोल्ट मेजर, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0, ऐसी वोल्टेज दिखेगी इसके अक्रॉस, समझेगी नहीं। तो
हाँ ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ऊपर वाला है जहां पे लगभग 1.5 वोल्ट दिख रही है, और ये पॉइंट नीचे वाला है मान लो जहां पे 0.5 वोल्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा सिचुएशन होगा। नाउ लुक एट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली कि यहां पे जो पॉइंट है, जो ऊपर वाले पॉइंट है 1.5, 1.2, 1.3 सोन, अपर रीजन में जो ड्रेन साइड रीजन है वो, और ये तो जीरो पे है VGS, तो इसका मतलब N इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू P साइड। ड्रेन जो है वो मोर पॉजिटिव पे है गेट के कंपेयर में, तो वो क्या हो गया? रिवर्स बाइस हो गया। और सिमिलरली ये 0.5 है और ये 0 है, ये भी रिवर्स बाइस है इस पॉइंट पे भी, और है ये भी रिवर्स बाइस ही। लेकिन ज्यादा रिवर्स बाइस किधर लग रहा है? ज्यादा रिवर्स बाइस यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा, 1.5 और 0, यहाँ पे 0.5 और 0। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? जहां पे रिवर्स बायस ज्यादा है वहां पे डिप्लेशन लेयर ज्यादा एक्सटेंड करेगी, वहां पे ज्यादा एक्सटेंड करेगी, और जहां पे कम है वहां एक्सटेंड तो करेगी लेकिन उतनी नहीं करेगी। तो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी दिखेगी। अगर VDS बढ़ता जा रहा है VGS इक्वल टू 0 पे, तो ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा इसको इधर डिप्लेशन लेयर थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड कर जाए और इधर ऐसे हो जाए, समथिंग लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रीजन है ऊपर वाला, यहां पे जो डिप्लेशन लेयर है वो ज्यादा वाइडेंड होगी एज कंपेयर टू द लोअर थिंग पार्ट। रीजन क्लियर है कि क्या हुआ है? तो ये बताने का मकसद ये था कि जब VGS जब चेंज होता है, वो इफेक्ट तो हमें पता है, तो हम VGS तो एक बार फिक्स कर देंगे कि इतना है भाई VGS। उसके बाद जब VDS को वेरी करते हैं तो डिप्लेशन लेयर पे या थिकनेस पे या कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो समझाने के लिए हमने VDS को किया है। फॉर एग्जाम्पल VGS 0 रखा, 0 वोल्ट, और अब VDS को इंक्रीज करना शुरू किया, तो VDS जैसे जैसे बढ़ा, यहाँ पे पॉइंट उतना उतना बढ़ता चला गया। 1.5 था, अगली बार हो सकता है वो 3.5 मिले हमें, यहाँ पे हो सकता है हमें 4.5 मिले। तो यहाँ पे नीचे के कंपेयर में डिप्लेशन लेयर ज्यादा वाइडन होगी और चैनल है वो ज्यादा नैरो होगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है, उस पॉइंट पे जाके, एक VDS की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब करंट नहीं बढ़ रहा है। ये सर्किट जो करंट लिमिटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? करंट लिमिटर की तरह। और उस वोल्टेज को कहा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या कहा जाएगा? पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज हुई जब VGS इक्वल टू 0 था। उस सिचुएशन में VDS जब बढ़ाते गए तो करंट एक बार मैक्सिमम तक पहुंचा, उसके बाद जब डिप्लेशन लेयर काफी वाइड हो गई तो अब करंट लिमिट कर गया, उससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ रहा है। और दैट करंट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, बट आई विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ दैट। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी कि करंट जो लिमिट कर गया है वहां पे मैक्सिमम तक पहुंच गया, उस वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा तब लिख लेना, ठीक है? अब इसको पिंच ऑफ वोल्टेज क्यों कहा जाता है? देखो, पिंच ऑफ वोल्टेज, वैसे पिंच ऑफ का मतलब वैसे समझा जाए आसान भाषा में तो क्या है? देखो कि पिंच का मतलब होता है कि होल्डिंग समथिंग इन 2 फिंगर्स लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस, ऐसे होल्ड करना किसी भी चीज को, सो इट इज समथिंग लाइक पिंच, ओके। और दूसरे हाथ से भी अगर समझें ऐसे ही, सो pinch from this right hand and pinch from this left hand. Now look at very carefully that it is something like this. It is something like this. Okay. So that is why this is the reason कि जहां पे वोल्टेज में ये सिचुएशन बन गई है, so that is the pinch of voltage. बात समझ में आई? So this is why the term is known as pinch of voltage, कि वहां पे डिप्लेशन लेयर है वो इस तरह से कुछ बन गई है दोनों तरफ से, ताकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा वाइडेंड है और नीचे की तरफ थोड़ा नैरोवर है, ओके। और ऊपर ज्यादा क्यों है ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कहानी है इसकी, बस ये वर्किंग है, इसी को समझते हैं। अभी समझ लिया है, अब एक बार लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, ओके। देखो, so JFET operates on the principle that width and the resistance of the conducting channel can be varied by changing the reverse voltage. रिवर्स वोल्टेज को चेंज करके हम उसकी कंडक्टिविटी, उसकी विड्थ, वो सब चेंज कर सकते हैं। ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज VGS, वाइडर विल बी द डिप्लेशन रीजन।
and narrower will be the conducting channel, narrower will be the channel, more will be the resistance, and the reverse will happen when VGS decreases. तो VGS डिक्रीज करने का मतलब है कि -3 वोल्ट से 0 की तरफ जाना, उसका मतलब ये हुआ. लेकिन इन एनी सिचुएशन हम वो मैक्सिमम मतलब समझा जाए अगर लॉजिकली, तो बात ये है कि करंट की वैल्यू जो मैक्सिमम थी वहां से लेके और जहां पे करंट 0 हो रहा है उसके बीच में ही हम वेरी कर पा रहे हैं VGS को. ऐसा नहीं है कि करंट को दूसरी डायरेक्शन में उतना इंक्रीज कर पा रहे हैं, उतना नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल 5 to 0 पे गए हैं तो उसी के बीच में ही चल रहा है बस. ऐसा नहीं कि दूसरी साइड में भी 5 हम बढ़ा दें, क्योंकि VGS 0 इज द लिमिट, उसके अलावा हम नहीं जा पा रहे हैं उधर. तो 0 से लेके और रिवर्स बाइस में जहां तक जा रहे हैं वो एक लिमिट है करंट की. तो दैट इज वाई दे आर डिफरेंट. इसीलिए इनको हम जेफेट की अलग कैटेगरी रखी गई है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही करंट को चेंज कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में कोई इनहांस नहीं कर पा रहा है करंट को, कि करंट जो था वो बढ़ा दिया गया है, करंट वहीं पे प्ले कर रहा है. बस कम करने पे ज्यादा फोकस है कि डिप्लेशन लेयर के साथ कितना प्ले कर पा रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज. आई होप इट इज क्लियर. नाउ द वर्किंग इज रिटन हियर, यू कैन write this. Okay, so when a voltage VDS, that is the output voltage, is applied between drain and source with 0 voltage on gate, that is VGS is taken as 0, electrons will flow from source to drain through the channel between depletion layer. The size of these depletion layers determine the width of the channel and hence current conduction through the bar. और जो दोनों डिप्लेशन लेयर हैं वो सिमेट्रिकली ही वाइडन होती हैं, सिमेट्रिकली ही छोटी होती हैं, क्योंकि दोनों सेम बाइसिंग से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है वो. ठीक है. व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, मतलब VGS को अप्लाई किया जा रहा है एंड रिवर्स वोल्टेज VGS इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीज्ड. होना ही था. दिस रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल एंड हेंस इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द bar. Therefore, the current from source to drain is decreased. ये बात हमने कर ली है. Similarly, the current, okay, ये हमने लिख लिया है. Similarly, the current from source to drain increase on decreasing. Okay, the current conduction in the n-channel JFET is carried by electrons and by holes in p-channel JFET. बात समझ में आ गई. n channel में कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. p में कौन करेगा? होल्स. Okay, the current through the bar is controlled by application of electric field or potential at the input. बात समझ में आ गई कि VGS की वैल्यू पुट करने से VGS 0 है तो करंट कहीं और जा रहा है, कहीं और तक जा रहा है. VGS की वैल्यू -1 कर दी है तो थोड़ा कम जाएगा, VGS -2 है तो थोड़ा और कम रह जाएगा, VGS -3 है तो कम रह जाएगा. मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द device is actually depending upon the input field or the voltage at the input circuit. That is why it is known as voltage control device. बात समझ में आ गई? बोलोगे तो नहीं? चलिए आगे चलो. इसको भी देखेंगे. If voltage VGS is continuously increased, अगर VGS को बढ़ाते जाएं 0, -1, -2, -3, -4, -5, तो what will happen actually? जो लेयर, जो डिप्लेशन लेयर है, दे विल ऑलमोस्ट टच ईच अदर, सो देयर विल बी नो कंडक्शन. तो कट ऑफ हो जाएगा करंट का इन दैट सिचुएशन. तो VGS बढ़ रही है तो ओके, VGS ओनली. So if VGS is continuously increased, a state is reached when the two depletion layers touch each other and the channel is cut off. Okay, ये इनके सिंबल्स हैं N चैनल और P चैनल को. तो देखो N चैनल के लिए गेट एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस चैनल, ये चैनल है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है. सिमिलरली P चैनल के लिए इट इज कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस वे. ओके, सो एक्चुअली अगर देखो जो वैक्यूम ट्यूब्स है उनका रिप्लेसमेंट वाज BJT, और BJT के पॉपुलर होने के बाद JFET आर मोर पॉपुलर. लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो JFET आर फिलोसफिकली मोर closer to the vacuum tubes as compared to BJT. And nowadays almost maximum of the electronic devices are using the case of FETs, MOSFETs and these kind of things. Okay, so
ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको नोट कर लेना है। BJTs आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस, नो करंट एंटर्स द गेट ऑफ JFET। लेकिन JFET के गेट पे कोई भी करंट नहीं आता है, दे आर मोर वोल्टेज कंट्रोल्ड, नॉट करंट कंट्रोल्ड। वो आपने देख भी लिया है वर्किंग में, अभी देखो। द BJT गेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय करंट गेन। उसमें हम करंट गेन कैलकुलेट करते थे, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांस कंडक्टेंस। क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? कौन सी क्वांटिटी? ट्रांस कंडक्टेंस, दैट इज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट करंट। आउटपुट करंट इज ड्रेन करंट ID टू द इनपुट वोल्टेज, दैट इज द गेट वोल्टेज। ये देखेंगे जब ट्रांस कंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे। बट यहाँ पे जो पैरामीटर है वो करंट गेन ना होके JFET का जो पैरामीटर है वो ट्रांस कंडक्टेंस है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन यूज JFET एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि एम्पलीफायर तो मेन है, तो JFET को भी एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। देखो, ये टिपिकल सर्किट हो गया है। अभी ये VGG विच इज द अप्लाइड वोल्टेज एट द गेट, और यहाँ पे सिग्नल अप्लाई होगा जो कि इनपुट सिग्नल है जिसको एम्पलीफाई करना है, और यहाँ पे आउटपुट कैरी की जाएगी। नाउ सी, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल, सिग्नल ऐसा होगा, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। So during the positive half cycle of the signal, the reverse bias on the signal decreases। होगा क्या कि reverse bias तो लगी हुई है, लेकिन जितना ये पॉजिटिव है तो it will try to reduce the reverse bias voltage at the input। तो ये उसको कम करने की कोशिश करेगा जो रिवर्स बायस थी। तो रिवर्स बायस जब कम होती है तो करंट बढ़ता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है, विड्थ चैनल की बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जब ये जा रहा है तो करंट, जब रिवर्स वोल्टेज कम हो रही है ओवरऑल ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव साइकिल, तो करंट विल इंक्रीज, द आउटपुट करंट, दैट इज द ड्रेन करंट। ओके, हेंस द ड्रेन करंट विल इंक्रीज। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन कि नेगेटिव हाफ साइकिल, कुछ नेगेटिव ये रहा, कुछ नेगेटिव ये रहा, इट विल enhance the reverse voltage। So if reverse voltage is increased, it means current will decrease। So during this time current will decrease more। Okay, the reverse voltage on the gate increases and hence the channel width decreases, therefore drain current also decreases। A small change in the reverse bias voltage, a small change in the reverse bias voltage produces a large change in the output current। जब reverse bias voltage को थोड़ा भी चेंज करते हैं तो there will be a larger reflection in the output। that is why जो सिग्नल जब बढ़ रहा था तो ज्यादा बढ़ेगा उधर, कम हो रहा था तो और नीचे जाएगा, इसीलिए सिग्नल विल बी amplified in form। okay, so this is how JFET can be used as an amplifier। बात समझ में आ गई? JFET को एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET यहां पे आ जाते हैं। देखो देखो, ये एक टिपिकल सर्किट है JFET का, और ये जो वोल्टेज है, यहाँ की जो वोल्टेज है, दैट इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, और दिस इज द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और ये आउटपुट बैटरी है जो VDD मान लो इसको, एंड सो ऑन। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज बिटवीन ID एंड VDS, आउटपुट करंट ID एंड आउटपुट वोल्टेज VDS। अब होगा क्या, देखो जैसा हमने समझा था, यहां पे भी एक बार मैं ओके ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहां पे इसको देखते हैं। सो एज VDS इज इंक्रीजिंग, ये देखो VGS ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये -1 -2 -3 उस हिसाब से समझना है इसको। रिवर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो जितना ज्यादा रिवर्स है, पहले इसको समझो
कि जितना ज्यादा रिवर्स है, मतलब -3 वोल्ट वाला है, तो करंट आईडी जो है वो यहीं तक ही गया है। थोड़ा कम रिवर्स है तो थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, तो जो VGS 0 होगा वो लगभग ऐसा दिखेगा। VGS जो 0 वोल्ट वाला है वो ऐसे दिखेगा, मतलब मैक्सिमम तो तभी जा सकता है। उसके बाद जब जब वोल्टेज लगेगी तो उतना उतना कम ही आता जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज है। अब हमें समझना है कि VGS को जब एक बार फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि VGS हमने 0 वोल्ट वाली ही ले ली है, तो VGS जब 0 वोल्ट वाली ही रखी है, उस टाइम पे इस करेक्टरिस्टिक को कैसे एक्सप्लेन करें? फिर तो बाकी तो क्लियर है बात कि अगर अलग अलग VGS है तो उसको कैलकुलेट कर, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर VGS के लिए इसको कैसे करें? तो वही हमने देखा कि जब VGS 0 है, मतलब ये 0 वोल्ट पे है इधर, उस सिचुएशन में VDS फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर रही है, तो जैसे जैसे VDS इंक्रीज करती है, करंट जो है एक बार इंक्रीज करने लगता है, लीनियरली करंट जो है वो इंक्रीज करने लगता है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्वेप्ट अवे, और at a particular value, for example here at VGS equal to 0 condition, now as VDS is increasing from here to here, so VDS is kept increasing, VDS increase हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल, उनका बीच का डिफरेंस भी बढ़ रहा है, ये फिर बढ़ा और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो ऐसी होने शुरू हो जाएगी, इधर से भी जो डिप्लेशन लेयर है वो ऐसी होनी शुरू हो जाएगी, और बढ़ेगा तो डिप्लेशन लेयर ऐसी होने लग जाएगी, तो यहां पे कम रहेगी, यहां पे ज्यादा रहेगी। So this is the situation of pinch off, and this voltage where this happens is known as VP, that is pinch off voltage, that is pinch off voltage। बात समझ में आ गई? So this is how we can explain। अब यहां पे देखो, जो मैंने कहा था कि करंट लिमिटर की तरह काम करेगा, करंट को होल्ड करेगा वहीं पे, तो ये जो मैक्सिमम करंट था, इट इज नोन एज IDSS। इसके बारे में भी समझेंगे। ये मैक्सिमम करंट है ID का, ये यहाँ पे होल्ड करके, और इसको करंट लिमिटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जब इसको करंट लिमिटर की तरह, जो इसका एक्टिव रीजन है वो एक्चुअली यहीं से शुरू होता है, यहां से लेके जहां तक ये सेम रहे, वो इसका क्या कहलाता है? एक्टिव रीजन कहलाता है। यहां पे इसको यूज किया जाता है ताकि करंट जो है वो कांस्टेंट रहे। इससे ज्यादा अगर आप VDS को बढ़ा दोगे तो द चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन शूट अप, ब्रेक डाउन ऑफ JFET विल बी देयर। तो अगर इस VDS मैक्सिमम की एक वैल्यू होगी, उससे अगर ज्यादा बढ़ा दोगे तो ब्रेक डाउन कंडीशन आ सकती है JFET की। एट दैट सिचुएशन ID में शूट अप हाईली, ऐसे बढ़ जाएगा ऊपर, बट दैट इज अ ब्रेक डाउन कंडीशन। इसलिए जो एक्टिव रीजन है वो ये वाला है। किस किस के बीच में? पिंच ऑफ वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? एक्टिव रीजन। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां से पिक्चर? और एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए, कि आप सोच रहे हो कि JFET हम इतना सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो JFET है वो आप डेली घर पे यूज कर रहे हो, नॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू बट एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी, इसको समझने के लिए, भूलोगे नहीं फिर। ये क्या है? ये तो सबने देखा होगा कि नहीं? सभी ने देखा होगा, सभी यूज करते हैं इसको, है ना? डेली यूज होता है। इसको समझो, ये लगभग JFET की तरह ही इसकी एनालॉजी है। समझते हैं कैसे? यहां पे फ्लो ऑफ वाटर जो है, ये कहां से आ रहा है एक्चुअली? ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई एक ओवरहेड टैंक है, एक वाटर टैंक है, वहां से पानी इसमें आ रहा है। तो जो चीज फ्लो ऑफ वाटर है, उसको हम समझ सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। JFET में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसी तरह से यहां से पानी को समझ सकते हैं। ये जो वाल्व है, जो नोब है, दैट इज समथिंग लाइक गेट।
ये किसकी तरह काम कर रहा है? गेट की तरह। मतलब अगर इसको भाई मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इसको पूरा ओपन करके रख सकते हो, दैट इज द 0 वोल्ट कंडीशन। तो उस सिचुएशन में जो आना है आएगा, जो सोर्स से ड्रेन में आना है करंट वो आएगा। वही सिचुएशन यहां पर भी है कि सोर्स अगर हम इसको माने और ड्रेन अगर हम इसको माने, यहां पे ड्रेन है, सिंक है ये, तो जो फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दिस वाटर टैंक एंड दिस ड्रेन। सो अगर इसको पूरा नोब को ओपन हम कर देते हैं तो मैक्सिमम जो सिचुएशन थी वो आ रही है। अब उससे हम इनहांस नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको कम जरूर कर सकते हैं। जो मैंने जेफेट में कहा था कि इसको इनहांस नहीं कर सकते, करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो देयर इज ए मार्जिन कि इसको बंद करने से लेके पूरा खोलने के बीच का वो मार्जिन है करंट का, वही मार्जिन करंट का जेफेट में है कि 0 वोल्ट से लेके और माइनस में जहां तक जाओगे वो मार्जिन वीजीएस के पास है, वही मार्जिन वॉल के पास है। सो इन दिस सिचुएशन दिस वॉल्व इज वर्किंग लाइक ए गेट। इसको अगर ऐसे बंद करेंगे, रिवर्स बायसिंग बढ़ाएंगे तो जो है वो करंट कम आएगा, खोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा। एक्चुअल में जो सोर्स है वो यहां पे भी है। मोर प्रैक्टिकली समझे तो सोर्स इज समवेयर लाइक दिस और ड्रेन जो है वो यहां है। सो ऐसे समझ सकते हो इसको कि वॉल जो है वो गेट है, ये ड्रेन है, इसको सोर्स समझ लो यहां पे या इसको समझ लो। बट अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि जो गेट कंट्रोल होने के बाद जो फ्लो आ रहा है दैट इज द फ्लो। ओके, तो ऐसे इसको समझा जा सकता है विद द एनालॉजी ऑफ जेफेट। ओके, तो अगर इसको बहुत टाइट कम बढ़ाते जाएंगे रिवर्स वोल्टेज तो यहाँ पे जो करंट है वो कम होता चला जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कम होता चला जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होता चला जाएगा। अगर मैक्सिमम खोल देंगे तो वीजीएस इज 0 वोल्ट और वही इसका टैप जो मैक्सिमम खुल जाएगा उस सिचुएशन में जो करंट आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। यहाँ पे ड्रेन है, ये गेट है, ये सोर्स है। बात समझ में आई? भूलोगे तो नहीं अब तो। जेफेट का बड़ा आसान फंडा हो गया ना कि गेट कैसे काम करता है, जैसे कि टैप का वाल्व जो है वो काम करता है, दैट इज द जेफेट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So the drain source voltage above which drain current become constant is known as pinch off voltage. तो यहाँ पे तो VGS 0 वाला हमने प्लॉट नहीं किया है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दैट इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज को हम VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज द चैनल विड्थ बिकम सो नैरो दैट डिप्लेशन लेयर टच ईच अदर, ऑलमोस्ट टच ईच अदर, and drain current passes through these layers. Hence, increase in the drain current is very small with VDS above pinch off. तो pinch off से ऊपर जाने के बाद जो करंट में जो इंक्रीज है दैट इज ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो यहां से भी पूछा जाएगा और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है जेफेट के वो समझो। So it is a 3-terminal voltage controlled semiconductor device. It is always operated with gate source PN junction as reverse bias. The gate current is always 0, that is IG is always equal to 0, and since IG is equal to 0, so the drain current and the source current are equal to each other. The JFET must be operated between VGS and VGS off. ये VGS off क्या है? VGS 0 से लेके अगर हम चलने जाएंगे नीचे तो करंट नीचे आता जा रहा था ना, देखो करंट जो है वो नीचे आता जा रहा है ना, VGS बढ़ते 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 बढ़ते। तो VGS की वो वैल्यू जहां पे ID 0 हो जाए, करंट जो है वो 0 हो जाए, दैट इज VGS ऑफ। उस पे भी आएंगे आगे, ठीक है। सो उसके बीच में ऑपरेट करता है कि 0 से लेके जहां पे बिल्कुल बंद हो जाए करंट। तो इसका भी वही समझो कि एकदम वॉल को ओपन करने से लेके और मैक्सिमम पुश करने तक उसके बीच में ऑपरेट करती है। उसी तरह से जेफेट है वो भी VGS 0 से लेके VGS ऑफ। जो VGS ऑफ है वो यहाँ पे वाल्व समझ लो कि क्लोजली टाइट है, अब कोई भी वाटर फ्लो नहीं आ रहा है। बात क्लियर है? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये IDSS हो गया। देखो IDS इज शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। इसको शॉर्टेड गेट क्यों कहा गया है?
क्योंकि VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट मतलब वी गेट और सोर्स आर ऑलमोस्ट शॉर्टेड, उनके बीच का डिफरेंस 0 वोल्ट है, तो दे आर शॉर्टेड. इट इज द ड्रेन करंट विद सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू गेट. VGS 0 वोल्ट पे देखो, अब यहां से करंट ऐसे इंक्रीज हुआ और उसके बाद ये पिंच ऑफ आया, पिंच ऑफ के बाद इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस. तो ये जो वैल्यू है करंट की दैट इज IDSS. ये एरिया एक्टिव एरिया है और ये ब्रेक डाउन है आफ्टर VDS मैक्स. तो कहां पे काम करता है जेफेट? VP और VDS मैक्स के बीच में करंट लिमिटर की तरह काम करता है, उसके ऊपर ब्रेक डाउन, इसके नीचे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. VGS 0 वोल्ट पे ऐसा है. बात समझ में आ गई? व्हाट अबाउट द पिंच ऑफ वोल्टेज? वैसे तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार लिख लो. इट इज द मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज, दैट इज VDS. ड्रेन सोर्स वोल्टेज का मतलब क्या? VDS at which the drain current essentially become constant. ड्रेन करंट यहां पे क्या हो गया है? कांस्टेंट. तो ये है पिंच ऑफ वोल्टेज. ओके, सो VDS इज ग्रेटर देन VP जब होता है, दैट इज द एक्टिव रीजन, और VDS मैक्सिमम से ऊपर चला जाता है, दैट इज द ब्रेकडाउन वन. और देखो ये भी अगर VGS के साथ प्लॉट करें करंट को, तो जब VGS 0 वोल्ट है उस टाइम पे करंट जो मैक्सिमम IDSS हमने डिफाइन किया है. नाउ VDS इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द रिवर्स बायस डायरेक्शन. सो करंट जो मैक्सिमम करंट जा सकता था दैट इज नाउ रिड्यूसिंग. देखो अब अगर इसमें समझे तो IDDS यहां तक आएगा, 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 राइट. तो इसका मतलब जैसे जैसे VGS नेगेटिव में बढ़ रहा है, करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है. तो जहां पे ID 0 आ जाए दैट इज नोन एज VGS ऑफ पॉइंट. क्लियर है? और इसको क्या कहते हैं? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज. क्या है इसका नाम? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज. ओके, so it is the gate source voltage when the channel is completely cut off and drain current becomes 0. चैनल का बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, there is no flow of the current through the channel. Okay, now let's write down few important facts about these. Okay, देखो, VGS off will always have the same magnitude value as VP. सोच के देखो जरा, VP है जहां मैक्सिमम गया था 0 से, तो VGS है जहां पे 0 आ रहा है. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड को देखूं, अगर एक 6 वोल्ट है, एक -6 वोल्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इज 6 and 6, तो उस हिसाब से VGS ऑफ और VP बराबर ही हैं, बस वो नेगेटिव में होती है और वो पॉजिटिव में होता है. और VP जो है वो VDS की वैल्यू है और VGS ऑफ जो है वो VGS की वैल्यू है. बात समझ में आ गई? सो अगर VP 6 वोल्ट है तो देखो VGS -6 वोल्ट होगा, तो इसलिए उनको ऐसे मेजर करके लिख सकते हैं कि VP is equal to माइनस VGS ऑफ. मॉडुलस में लिखें तो बराबर आ जाता है, ठीक है. तो VP जो है इट इज द वैल्यू ऑफ VDS एंड VGS ऑफ इज द वैल्यू ऑफ VGS. आई होप these terms are very clear to you and this is a very important formula. और अगर देखो सवाल तो पूछेगा तो बेसिक से ही पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल तक जाने की कोशिश की तो दिस इज द फॉर्मूला, इसी से पूछा जाएगा. फिर ओनली वन फॉर्मूला इज दिस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये क्या है? ड्रेन करंट का. ड्रेन करंट देखो इसमें कितनी चीजें सॉर्टेड हो गई हैं. गेट करंट है ही नहीं, सोर्स करंट और ड्रेन करंट एक ही चीज है, तो एक ही चीज के बारे में आप ज्यादा वैल्यू कर रहे हो. अदरवाइज BJT में जब हम देख रहे थे तो वहां पे बहुत सारे पैरामीटर ऐसे थे जो हमें निकालने पड़ रहे थे. तो यहाँ पे चीजें बड़ी क्लियर हैं कि आपको या तो करंट पूछेगा तो ID ही पूछेगा, या वोल्टेज पूछेगा तो फिर वोल्टेज आपको पता है कि किरचॉफ्स लॉ लगाना है या क्या करना है आउटपुट सर्किट में, तो वहां से VDS पूछा जा सकता है बस मैक्सिमम, और क्या पूछेंगे, राइट. सो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो ये क्या ड्रेन करंट की वैल्यू है एट गिवन वैल्यू ऑफ VGS. अगर आपको पता हो कि VDS की वैल्यू इतनी है तो बताइए कि ID कितना होगा, ड्रेन करंट कितना होगा. इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला कि VGS की पर्टिकुलर वैल्यू, VGS ऑफ कहां पे है, IDSS क्या है, ID की वैल्यू क्या है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, देखो ID स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन IDSS अगर 32 मिली एम्पेयर है, VGS ऑफ आपको दिया है -8 वोल्ट,
VGS आपको दिया है -4.5 वोल्ट, आपसे पूछा ID बताइए कितना होगा, तो ID 32, 1 माइनस दिस -4.5 डिवाइड बाय -8 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, ओके, तो इट इज 6.12 मिली एम्पेयर। सो यू कैन सी कि जो मैक्सिमम VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पे, ये कौन सा करंट है, इट इज VGS इक्वल टू 0 वोल्ट वाला, इसकी वैल्यू 32 मिली एम्पेयर है, लेकिन जब VGS -8 वोल्ट हो गया है उस सिचुएशन में ये 6 मिली एम्पेयर पे आ गया है करंट, देख पा रहे हो। तो करंट रिड्यूस हुआ है जब VGS नेगेटिव में बढ़ा है -8 वोल्ट पे, 32 से लगभग लगभग कितना आ गया है, लगभग 1/5 टाइम्स आ चुका है, राइट। सो ये भी आप जो हमने डिस्कशन किया है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ JFET? So it has a very high input impedance. They have negative temperature coefficient of resistance. ये भी पॉइंट ध्यान रखना है. They have high power gain, smaller size and long life and high efficiency. Now what are typical parameters of JFET? So ये भी देख लो एक बार. AC drain resistance. AC drain resistance, that is RD. So ratio of change in the drain source voltage VDS to the change in drain current. Output voltage by output current is the drain resistance. नाम से भी पता है drain resistance, output resistance की बात हो रही है at constant value of VGS. और यहाँ पे ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि करंट तो होता नहीं है इनपुट पे, तो ये करंट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो यहाँ पे कांस्टेंट VGS की वैल्यू रखनी है, तभी तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या है। VGS ही वेरी करते रहोगे तो आपको ट्रू पिक्चर VDS की नहीं मिलेगी, इसलिए कीपिंग VGS कांस्टेंट एंड वेरिंग VDS इज अ गुड थिंग टू डू, ओके। सो व्हाट इज द ट्रांस कंडक्टेंस? ट्रांस कंडक्टेंस देख लो। So transconductance is the ratio of change in the drain current ID to the change in gate source voltage VGS, output current by input voltage, that is transconductance. इसको आप GM से भी कई बार लिखा जाता है, GM से भी लिखा जाता है, GFS से भी लिखा जाता है। इसकी जो यूनिट होगी देखो, वो अगर करंट की टर्म में बात करें तो एम्पेयर वोल्ट, मिली एम्पेयर वोल्ट ऐसे हो सकता है, या रेजिस्टेंस की टर्म में बात करें तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट, इसीलिए इसको महो और साइमन यूनिट भी दी हो सकती है इसकी, ठीक है। और यही फॉर्मूला देखो इस पे भी अप्लाई है, GFS इज इक्वल टू GFSO 1 माइनस VGS अपॉन 1 माइनस VGS ऑफ। तो ये वैल्यू है जब VGS इक्वल टू 0 था उस टाइम पे ट्रांस कंडक्टेंस की, और फिर आपसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS पे अगर ट्रांस कंडक्टेंस पूछा जाए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो पैरामीटर है वही रिप्लेस हुआ है, बाकी जो टर्म है वो तो वही है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. So amplification factor is given by mu here, which is the ratio of drain source voltage VDS to the VGS, output voltage by input voltage at constant value of VD. और अगर देखो इसको कैलकुलेट भी करोगे तो ऊपर जो आपने RD और GFS लिखा है उनके मल्टीप्लीकेशन से भी आपको यही मिलेगा, VDS by VGS, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप सोचो कि भाई एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के लिए ये गिवन होना चाहिए था और आपको ये दे दे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी उसको लिख सकते हो, सेम थिंग है, राइट। तो ये जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है दैट एक्चुअली टेल्स दैट हाउ मच मोर कंट्रोल द गेट वोल्टेज हैज ओवर द ड्रेन करंट देन ड्रेन वोल्टेज। बात समझ में आई कि जो ड्रेन करंट है उस पर VGS का कितना कंट्रोल है एज कंपेयर टू VDS, ये है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ओके। Now the next is JFET biasing. However, that is not that much important from your exam point of view. But anyway, let's discuss that in very brief. क्योंकि अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहे यहाँ पे उसमें ये काम आ सकती है। देखो, तो जैसे हमने BJT की बाइसिंग पढ़ी थी उसी तरह से JFET की बाइसिंग दो तरह की है, बायस बैटरी के थ्रू, बायस बैटरी और बाइसिंग सर्किट। तो बायस बैटरी तो अकेला पढ़ेंगे इसी को ही, और बाइसिंग सर्किट में दो तरह के ऑप्शन है, सेल्फ बायस का और पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड को तो अभी आप नहीं भूलने वाले हो, है ना। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड तो हम कब से यूज करते आ रहे हैं, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर हो गई होगी कि एक ऐसा सर्किट जहाँ पे R1 R2 लगे हैं, जो डिवाइडेड पोटेंशियल वोल्टेज है दैट इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द चैनल, दैट इज द पोटेंशियल डिवाइडर, राइट। देखो बायस बैटरी क्या है,
बायस बैटरी में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बैटरी माइनस VGG लगा दी एट द इनपुट। ये सिग्नल है, ये VGG, RD इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, और इन दो पॉइंट्स के बीच की जो ड्रेन और सोर्स के बीच का जो ड्रॉप है वो VDS है, और बैटरी लगी है VDD। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो। अब सिंस देयर इज नो गेट करंट, हेंस VGG इज इक्वल टू VGS। गेट करंट होता नहीं है, तो जो VGG है वही आपकी VGS है, कोई भी ड्रॉप अक्रॉस दिस नहीं है। इस सर्किट को कैसे सोल्व करेंगे देखो, किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो VDD माइनस, देखो प्लस यहां पे है, माइनस IDRD माइनस VDS इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो लगाया था हमने किरचॉफ लॉ, बस इसको सोल्व कर लो। तो VDS विल बी इक्वल टू VDD माइनस IDRD। ये आपका VDS की वैल्यू आ जाती है अगर कभी पूछा जाए तो। ये कॉन्सेप्ट कराने का मेरा पॉइंट यही था कि अगर कभी बहुत एडवांस लेवल पे जाके पेपर के एग्जाम के अकॉर्डिंग ना होके यहाँ से पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस है, और ये ID का रिलेशन तो आपको पता ही है। तो दिस इज द बायस बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अब देखो सेल्फ बायस कैसे होता है। सेल्फ बायस फॉर JFET, सेल्फ बायस में यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, देयर इज नो बैटरी। However, there is a resistance RS, which is the source resistance. हमें अल्टीमेटली मैंने शुरू में क्या कहा था कि रिवर्स बायस का मतलब वही है कि N चैनल कितना ज्यादा हाई पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू P चैनल, तो इसीलिए बैटरी लगानी जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो होगा क्या, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो हम देखते हैं कैसी होगी। देखो, तो वोल्टेज अक्रॉस RS क्या होगा, करंट ID है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी ID इंटू RS, वही वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। तो जो करंट फ्लो कर रहा है ID इंटू RS। सो द गेट टर्मिनल इज एट DC ग्राउंड, तो यहां से कोई बैटरी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब VG इज इक्वल टू 0 है, और VGS क्या होता है, VG माइनस VS। सो VG इज 0 एंड VS इज IDRS। तो यहां से देखो VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। तो जो गेट सोर्स वोल्टेज है, करंट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये जो वोल्टेज VGS है ये अपने आप में नेगेटिव आ गई है, तो ये सेल्फ बाइस हो गया है RS के लगाते ही। अब आपको यहाँ पे बैटरी देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। सो ये यहाँ पे काम कर रहा है, और अगेन आप देख सकते हो VDD माइनस IDRD, इसमें कैसे लगेगा, VDD माइनस IDRD माइनस VDS माइनस IDRS इज इक्वल टू 0। अब निकालो जिसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको VDS निकालना है तो VDS को उधर लेके जाओ, VDD माइनस ID कॉमा ब्रैकेट RD प्लस RS। इस इक्वेशन से इक्वेशन आ गई है, बड़ा इजी है ये। द नेक्स्ट इज योर फेवरेट वन, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बायस फॉर JFET। आप कह रहे हो सर आप हमें क्यों कह रहे हो फेवरेट वन, हम तो पहले ही दुखी इतने सारे सर्किट देख देख के, है ना। So R1 and R2 forms a voltage divider across drain supply VDD. So here is the voltage drop जो कि इसके इनपुट पे जाएगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 होगी वो उसको हमने नाम दिया V2, दैट इज VDD डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इनटू R2 के अक्रॉस देख रहे हैं तो दिस वन। ओके, तो V2 देखो क्या है। सो V2 अगर इस सर्किट में हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो V2 माइनस यहाँ पे VGS, V2 माइनस इनके बीच का वोल्टेज ड्रॉप VGS माइनस IDRS इज इक्वल टू 0। तो ये V2 का रिलेशन आ गया। देखो हम VGS जानना चाहते हैं कि वो रिवर्स बायस हुआ कि नहीं हुआ, तो VGS की वैल्यू आ गई V2 माइनस, VGS उधर जाएगा, V2 माइनस IDRS। नाउ हम चाहते हैं कि अगर IDRS V2 से ज्यादा रहे तब हम कह सकते हैं कि VGS नेगेटिव होगा, तभी VGS नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल डिवाइडर कंडीशन यही है कि अगर IDRS इज ग्रेटर देन V2 है तो VGS नेगेटिव होगा, और उसके बाद फिर आपकी बाइसिंग हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक स्टेबल सर्किट है। अगेन उसी तरह से यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो, VDD वाले सर्किट से आउटपुट सर्किट में जो हमने पहले लगाया था उसी से आप VDS कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिस है बाइसिंग वाली, इससे द आइडिया वाज कि
you should be familiar with these terms and the solving circuit of JFET. So they are very easy as compared to BJT. Okay. Now देखो सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने बीजेटी में पढ़ा उसके साथ साथ लिंक करके आप थोड़ा एक आइडिया तो ले पाए कि इधर क्या होगा। अब इधर भी जेफेट की भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। जैसे वहां पे था कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे भी ऐसे 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन। इनमें से कॉमन सोर्स इज ऑफ मच वाइडर यूज्ड। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कॉमन सोर्स। और कॉमन सोर्स इसकी लगभग कंपेरेबल है कॉमन इमीटर ऑफ बीजेटी, कॉमन इमीटर ऑफ बीजेटी के साथ ये कंपेरेबल है। ठीक है, क्योंकि ये भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देती है इनपुट आउटपुट में। सो ये ध्यान रखना है। ओके, so this is a practical circuit of JFET. This is how it looks like in the electronic circuits. So here is a gate resistance RG. ये यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। आप इसको ऐसे कर लेना, ऐसे करके प्लस VDD RD। ओके, so here is the source resistance RS, here is the drain resistance RD, here is the coupling capacitor CC, here is the bypass capacitor CS। तो ये यहाँ पे सभी के यूजेस लिखे हुए हैं कि RG का काम क्या है। इट कीप्स द गेट एट अप्रोक्सीमेट 0 वोल्ट और ऑल्सो टू अवॉइड द लोडिंग इफेक्ट ऑफ AC। सिमिलरली जो RS है ये आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS क्रिएट्स बाइस वोल्टेज। ये हमने देखा कि RS के अक्रॉस जो वोल्टेज बनती है वो बाइसिंग में कैसे मदद करती है। CS जो है वो बाईपास AC कैपेसिटर है जो AC ग्राउंड पे रखता है, और जो CC है वो कपलिंग कैपेसिटर है टू कपल द सिग्नल। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी बेसिक हो गई हैं अभी आपके लिए, क्योंकि आप बीजेटी की दुनिया में डूब के आए हैं। अच्छा, वहां पे भी हमने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट और एसी इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े थे। तो क्या पढ़ा था कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में अगर एनालाइज करना है तो एसी सोर्सेज है उनको जीरो कर दीजिए, जो कैपेसिटर है उनको ओपन कर दीजिए। और जब एसी इक्विवेलेंट सर्किट में कहा था कि जो डीसी सोर्सेज है उनको जीरो कर दो और जो कैपेसिटर है उनको बाईपास कर दो, सॉरी शॉर्ट कर दो, राइट। तो वही यहाँ पे है कि डीसी इक्विवेलेंट में देखो ऑल एसी सोर्सेज को जीरो करके ऑल कैपेसिटर्स को ओपन करके वी कैन एनालाइज। एसी इक्विवेलेंट सर्किट में ऑल डीसी सोर्सेज को जीरो कर दो, शॉर्ट ऑल द कैपेसिटर। और ये शॉर्ट और ओपन क्यों करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया भी हुआ है। आइडिया इज सिंपली रिएक्टेंस डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें भी लोड लाइन एनालिसिस हम कर सकते हैं। वहां पे हमने ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किए थे ना, यहाँ पे देखो लोड लाइन एनालिसिस कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड के थ्रू। तो आउटपुट सर्किट में चलते हैं। VDD माइनस IDRD माइनस VDS माइनस IDRS इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने लिखी। तो VDD की वैल्यू हमने यहां से निकाली, दैट इज IDRD, और IDRS से ID कॉमन ले लिया और VDS ये रहा। और VDS की वैल्यू हो गई है VDD माइनस IDRD प्लस RS। अब हम वेरिएशन क्या है, हमारे पास एक स्केल VDS का है और एक स्केल हमारे पास ID का है। ठीक है, तो इसीलिए VDS और ID की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम एक पर्टिकुलर VGS को पकड़ के चलते हैं, फॉर एग्जांपल -2 वोल्ट वाली को। तो इस सिचुएशन पे हमने देखा कि जब VDS वाले स्केल पे जब ID 0 होता है, जब इस लाइन पे जब ID 0 है तो VDS की वैल्यू क्या है। तो ID को जैसे ही 0 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि VDS इज इक्वल टू VDD। तो VDS इज इक्वल टू VDD, यहाँ पे कट लगा दिया। इस वाली लाइन पे देखते हैं कि इस वाली लाइन पे VDS 0 होगा, तो जब VDS 0 होगा तो ID की वैल्यू क्या होगी। तो जब VDS 0 होगा तो ID की वैल्यू ये आएगी इस इक्वेशन से। तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है, VDD अपॉन RD प्लस RS। अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है। ये जहां पे कट करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, वो पॉइंट होगा आपका ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। यहां पे वैल्यू मिल जाएगी ऑपरेटिंग पॉइंट के ID की और इसके VDS की। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ वी कैन डू द DC लोड लाइन एनालिसिस ऑफ दिस।
वो लोड लाइन जो एनालिसिस है वो एप्लीकेशन है डीसी इक्विवेलेंट सर्किट्स का। एसी इक्विवेलेंट सर्किट के कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें देख लो बस, ठीक है। एसी इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्टेज गेन जब हम जेफेट का निकालते हैं तो दैट इज इन एसी इक्विवेलेंट सर्किट। देखो इस सर्किट में क्या किया गया है कि जो पोटेंशियल डिवाइडर जो मेथड था उसका जो R1 R2 था उनको पैरेलली जोड़ के उनका एक टोटल रेजिस्टेंस RT लगा दिया है, ठीक है। और यहां पे जो RD था उसके साथ एक लोड RL और लगा दिया पैरेलल में, RL लोड रेजिस्टर। तो उसका रिजल्टेंट ये है, तो ये RAC है। RAC मतलब ये किस किस का इक्विवेलेंट है, RD एंड RL। अगर लोडेड है तो RL लगा हुआ है, अनलोडेड है तो RL हटा हुआ है, ये मतलब है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे सोर्स रजिस्टर कोई भी नहीं लिया हुआ है उस सिचुएशन में। देखो यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल अगर कोई छोटा क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो देखो, तो वोल्टेज गेन है दैट विल बी GM, दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस इनटू RAC डायरेक्ट, GM वैल्यू इनटू RAC। तो RAC में RD और RL अगर लोडेड है तो उनका इक्विवेलेंट, अनलोडेड है तो सिर्फ RD, तो अनलोडेड में सिर्फ ये RD से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे वोल्टेज गेन निकलेगा। इसी तरह से वोल्टेज गेन अगर हम सोर्स रेजिस्टेंस RS लगा दें, यहां पे क्या कर दिया, अभी सोर्स रेजिस्टेंस लगा दिया गया RS, ठीक है। तो देखो GM इंटू, अभी अनलोडेड है तो अनलोडेड में सिर्फ RD ही है, RD डिवाइड बाई 1 प्लस GM इंटू RS। तो ये जो फैक्टर है 1 प्लस GM इंटू RS, ये इस सोर्स रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं सर्किट को तब ये आता है, बट उसको सोल्व करके और उसमें इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 1 प्लस GM इंटू RS का फैक्टर डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे भी वही है, लोडेड में RD की जगह RAC हो गया क्योंकि RD पैरेलल RL विच इज RAC। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी है जेफेट की, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। काफी आसान है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि डायोड को पढ़ा, डायोड के बाद बीजेटी उसी फ्लो में पढ़ा और इतनी सारे डिस्कशन उस पर किए, तो एक माइंड में बैठ जाता है कलेक्टर इमीटर बेस वाला कॉन्सेप्ट। अदरवाइज जेफेट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इजी, और फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें ज्यादा होप नहीं है कि कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाए। लिमिटेड एरिया है तो क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपके लिए अच्छा है कि आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक बार खुद से बैठ के टैप के साथ एनालॉजी करेंगे जब इसको पढ़ेंगे, तब और पक्का हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मोसफेट। ओके, उसमें वो मार्जिन रहेगा हमारे पास कि हम उसको डिप्लीशन की तरह भी कर सकते हैं कि जब डिक्रीज कर रहे हैं तो इनहांस भी कर सकते हैं। तो मोसफेट में ये मार्जिन रहता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो इससे थोड़ा सा अलग रहेगा उसका कॉन्सेप्ट। मतलब उसमें देखेंगे हम कि कैसे मेटल का, ऑक्साइड का और सेमीकंडक्टर का एक चैनल बनेगा थ्रू विच the things become more important in the MOSFET. Anyway, that will be the part of the next lecture. In case of any doubt, please feel free to discuss and watch this lecture, complete this lecture, ask if there are any doubts. Okay, so bye bye, have a good time, take care.